Good morning, students, and welcome so much to your first digital literacy class. So, in this class, we will learn about digital literacy. So, let us begin. So, we all know what internet is. Internet is a way of connecting with different people, finding different information. Yes, but my first question to you is, how do you access internet? How do you go to internet? Yes, आप इंटरनेट पे जाते कैसे हो? This is my first question to you all. So the answer is simple. You access internet via browser. What do you How do you access internet? You access internet through browser. Now, what is browser? So browser एक ऐसा ऐप होता है, आप बोल सकते हो, एक ऐसा एप्लीकेशन है. So browser is an application that lets you access internet. I Please pause the video and write the definition down. Access मतलब किसी चीज में जाने देना. ठीक है, तो ब्राउजर एक ऐसी ऐप है, ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको इंटरनेट पे जाने देती है. अगर आपके फोन में या लैपटॉप में ब्राउजर नहीं होगा तो आप इंटरनेट पे नहीं जा पाओगे. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डू नॉट हैव अ ब्राउजर इन योर फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर, यू विल नॉट बी एबल टू गो टू इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे. So make sure you're writing this definition down in your notebooks. Okay, now let's see what are different types of browsers available. So you see Mozilla, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, UC browser. So market में बहुत सारे browser available है. These are common browsers that we use. Okay, so in your notebook write these browsers down. These are the common browsers. Okay, these are the list of browsers that you usually use. List of browsers. Okay, so these are the list of browsers. So I hope you have written down the names. So you can see Mozilla, Firefox, you have Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, and UC browser. So using these browsers you can go on internet. So now I'm going to use Google Chrome. Look, so now when I click on Google Chrome, this is what comes in. Now this here that you see, इसको बोलते हैं, इस यहाँ पर हम हमारा जिस भी हमें वेबसाइट पे जाना है. अब मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाऊंगी. मैंने जैसे गूगल क्रोम पे क्लिक किया तो अब मैं इंटरनेट पे चली गई. बट इंटरनेट पे मुझे कहाँ जाना है? हो सकता है मेरे को यूट्यूब पे जाना हो या मुझे फेसबुक पे जाना हो. सपोज आपको मुंबई सिटी में आप अभी अभी पहुंचे हो. मुंबई सिटी आप रेलवे स्टेशन पे तो पहुंच गए, रेलवे स्टेशन ट्रेन से आए और रेलवे स्टेशन से आप मुंबई स्टेशन पे आ गए. ठीक है, बट अब अगर आपको कौन से गोरेगांव जाना है, राम मंदिर जाना है, अंधेरी जाना है, कोलाबा जाना है, अब कहाँ आपको जाना है वो आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा ऑटो वाले को. वैसे ही अब आप ब्राउजर की यूज से इंटरनेट पे तो आ गए हो, बट आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है उसका वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ेगा. So suppose I want to go to Google. So I will write www.google.com. So I should know वेबसाइट का एड्रेस. जब तक मुझे वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता होगा मैं गूगल क्रोम पे नहीं जा पाऊंगी. तो इधर मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिखा है. What have I written? I've written website address over there. Website address. Example. I hope you're writing this down in your notebooks.
www.google.com। ठीक है, सो अब मैं गूगल पे आ गई। अब गूगल क्या करता है, गूगल मुझे सर्च करने देता है। अगर मेरे को किसी भी जगह जाना है और मुझे पता ही नहीं है उस चीज का नाम क्या है, तो मेरे को गूगल क्या किस चीज में हेल्प करता है, मुझे गूगल हेल्प करता है वो चीज को ढूंढने में। सो मेरा गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। व्हाट इज माय गूगल? गूगल इज कॉल्ड सर्च इंजन। सो गूगल इज सर्च इंजन। गूगल मेरी हेल्प करेगा ये फाइंड करने में कि मुझे कोई भी चीज अगर ढूंढनी है तो गूगल विल हेल्प मी फाइंड, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। सो अगर आप गुम गए हो और आपको कहीं पे जाना है तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो। सो गूगल पुलिस की तरह ही है, वो आपकी हेल्प करता है ढूंढने में। ठीक है, नाउ so if I want to search about say Mumbai, so I can search in Google and it will tell me everything related to Mumbai. So you can see it's a city in Maharashtra, then Mumbai traffic, that okay. So it's telling me different things that is happening. यहाँ पे news आ रहा है, ये मुंबई की सारी information आ रही है, यहाँ पे pictures आ रही है. So मुझे मुंबई के बारे में सब कुछ बता दिया. ठीक है? So this is how my search engine works. Next, I want to tell you internet का एक और use होता है and that is mail send करना. नाउ यू नो, पुराने जमाने में पोस्ट ऑफिस होता था और पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता था, वहां पे जाके आप लेटर सबमिट करते थे। वहां पे लेटर सबमिट करने के बाद में पोस्टमैन आता था, उसको कलेक्ट करता था और जो भी एड्रेस होता था वहां पे वो लेटर सेंड कर देता था। सो यू कैन सी दिस पोस्टमैन हैज ऑल दीज लेटर्स जो वो जा रहे हैं डिलीवर करने, है ना। सो हम पुराने जमाने में खत लिख के, लेटर लिखकर हम अपने जो फ्रेंड्स दूसरी सिटीज या दूसरे कंट्री में होते थे उनसे बात करते थे। बट नाउ जब इंटरनेट आ गया तो लोगों ने कहा कि लेटर क्यों भेजे, लेटर भेजने में बहुत हफ्ते और दिन लगते हैं। इट टेक्स लॉट्स ऑफ वीक। अगर आपको कोई और कंट्री में भेजना है लेटर तो इट टेक्स वीक्स टू सेंड दैट लेटर, और सेम कंट्री में और सेम सिटी में डेज लग जाते हैं लेटर जाने के लिए। तो उन्होंने सोचा इंटरनेट क्यों ना हम जो हमारा मैसेज है इंटरनेट पे भेजें। तो नाउ यू ऑल यूज व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप यूज करके हम क्विकली 1 सेकंड में हमारा मैसेज भेज सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दिस इज व्हाट्सएप का वेब एड्रेस, मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी इट इज web.whatsapp.com. So now WhatsApp will open. So this is one way of sending messages, text message. एक और तरीका है मैसेज भेजने का, मेल भेजने का, दैट इज Gmail, Yahoo Mail. So let's see what is Gmail. Okay, so मैंने वेब एड्रेस में लिखा www.gmail.com. ठीक है, ओके, सो ये नहीं आया। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सर्च गूगल। ओके, नाउ मेरे पास गूगल आ गया। सो आई कैन नाउ क्लिक ऑन गूगल अकाउंट। देन आई कैन गो एंड आई विल राइट एड अनदर अकाउंट। ठीक है, गूगल पे जाके मैंने एड अनदर अकाउंट कर दिया। नाउ आई एम टीचिंग यू हाउ टू मेक मेल। ठीक है, सो अभी पहले अगर मेरे को गूगल पे यूज करके मेल सेंड करना है तो हाउ डू आई, फर्स्ट आई विल हैव टू क्रिएट मेल आईडी। मेरे को एक आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी कैसा है, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है और आपका जो भी पोस्टमैन होता है घर पे आपके लेकर आता है कोई भी पोस्ट, वैसे ही आपको इंटरनेट पे एक आईडी बनाना पड़ता है। ये आपके घर का इंटरनेट का एड्रेस है, वरना आपके जो फ्रेंड्स आपको मेल भेजेंगे वो कहाँ पे जाएगा, उसके पास तो कोई एड्रेस ही नहीं होगा। सो आप क्या करोगे, आप एक जीमेल आईडी बनाओगे, एक ईमेल आईडी बनाओगे। सो कैसे करेंगे, आपने देखा मैं क्रिएट अकाउंट पे गई, फिर उसके बाद अब मैं क्रिएट अकाउंट करूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर माई सेल्फ, मुझे किसके लिए बनाना है अकाउंट, मेरे को खुद के लिए बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आई हैव टू राइट माय नेम, सो मानसी। तो यहाँ पे आप अपना खुद का नाम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंह, यहाँ पे मेरे को कोई भी मानसी डॉट सिंह।
ठीक है, ये लिखा मैंने @gmail.com। फिर अगर मैं पासवर्ड लिख रही हूँ, सो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड 8 लेटर्स का होना चाहिए और वो उसमें लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और सिंबल होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को पासवर्ड लिखना है तो मैं लिख कोई भी पासवर्ड आप लगा सकते हो, और ये पासवर्ड आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ना टीचर के साथ, ना पेरेंट्स के साथ, ना फ्रेंड्स के साथ। नहीं तो कोई भी आपका पासवर्ड यूज करके आपके अकाउंट में जा सकता है। ठीक है, और उसका मिस यूज कर सकता है। इट्स लाइक घर की चाबी हम किसी को भी दे दे और फिर वो घर से सामान चुरा सकता है, वैसे ही अगर आप अपना ईमेल आईडी दे दोगे, ईमेल आईडी का पासवर्ड दे दोगे, तो लोग आपका मिस यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं पासवर्ड लिखना चाहूँ तो कोई भी पासवर्ड मैं लिख रही हूँ आपको बताने के लिए। ABCD, तो लेटर हो गए, फिर नंबर लिखना है, 1 2 3 नंबर डाल दिया, और फिर सिंबल, मेरे को सिंबल भी लिखना है तो मैं परसेंटेज डाल देती हूँ। ठीक है, कोई भी कर सकते हो, मैं बस एग्जाम्पल के लिए इतना सिंपल दे रही हूँ। प्लीज ये वाला पासवर्ड मत यूज करना, खुद का कोई पासवर्ड बनाना। यहाँ पे आपको सेम पासवर्ड को रिपीट करके लिखना है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट प्रेस करती हूँ। अब क्या लिखाया? दिस यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। ये किसी और का ईमेल एड्रेस है। जिसका कहीं पे घर है तो उसके घर के ऊपर थोड़ा आप अपना घर बना सकते हो, वैसे ही इधर भी अगर कोई ईमेल यूजर नेम, मेरा ईमेल आईडी किसने ले रखा है तो मेरे को अलग बनाना पड़ेगा। सो मैं इधर क्या करती हूँ, मैं एक नंबर डाल देती हूँ 6695। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। ये भी ले रखा है तो इसके आगे मैं 0 डाल देती हूँ। चलो ये हो गया। अभी फोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आप चाहो। यहाँ पे अब अपना अपना बर्थडे लिख दो, जो भी बर्थडे है। 6, यहाँ पे मैं जून डाल देती हूँ। ओके, सो नाउ वन रिक्वेस्ट आई हैव फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज आप सब स्टूडेंट्स राइट योर ईयर ऑफ बर्थ है 2004। अगर आप अपना एक्चुअल ईयर डालोगे तो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं कर पाऊंगी बाद में। सो प्लीज पुट योर ईयर एज 2004, देन क्लिक, जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करो, उसके बाद में नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आई अग्री पे नीचे स्क्रॉल करो, क्लिक ऑन आई अग्री। Now it is loading. So now my email ID has created. अब उन्होंने मेरा Gmail का अपना ID create कर दिया है। ठीक है, now here I can access my mail, Gmail. ठीक है, now it is loading Gmail. So now this has opened. So this is my Gmail. जितने भी मेरे को मेल्स आएंगे, जितने भी मुझे मेल आएंगे यहीं पे आएंगे। देखो मेरे को फर्स्ट मेल आ भी चुका है। फर्स्ट मेल मेरा किसने भेजा है? गूगल कम्युनिटी ने भेजा है। गूगल कम्युनिटी टीम ने मेरे को फर्स्ट मेल भेजा और ये क्या बोल रहा है? हाय मानसी, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग गूगल अकाउंट, है ना? ये मेरे को थैंक यू बोल रहा है। तो जो भी आपको मेल भेजेगा वो इधर लिखा आएगा। अगर आपको कोई न्यू मेल बनाना है और किसी अपने फ्रेंड को भेजना है तो आप ऐसे कर सकते हो, कंपोज कर सकते हो। यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस डालो। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है? जो अभी मैंने बनाया था, इस वाले अकाउंट का क्या है? देखो यहाँ लिखा रहा है mansi.singh66950@gmail.com। चलो मैं खुद को ही भेज के देखती हूँ, क्या मैं खुद को मेल भेज सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मैं खुद को ही भेजती हूँ, mansi.singh66950@gmail.com। तो अगर आपको किसी से भी बात करनी है या किसी को भी आपसे बात करनी है तो उनको यही ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, जो आपका खुद का ईमेल आईडी है, जो @gmail.com से खत्म हो रहा है, वो डालना पड़ेगा। सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट मेल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाय मानसी, और फिर मैं यहाँ पे इसको सेंड दबा देती हूँ। सेंड दबाने से क्या हुआ? मेल चला गया। लुक, आ भी गया जल्दी से मेरे पास। तो अगर मैं किसी और को भेजती तो उसके ईमेल आईडी, उसका जो जीमेल का ये जो अकाउंट है उसमें आता। अभी क्योंकि मैंने खुद को ही भेजा तो देखो आ गया, आ गया। फ्रॉम कौन है? मैंने खुद को ही भेज दिया। यहाँ पे फ्रॉम लिखा था, फ्रॉम मानसी सिंह मैंने भेजा, टू मैंने खुद को ही भेज दिया। देखो डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। ठीक है, और मैंने हाय मानसी लिखा था तो हाय मानसी भी आ गया। तो इस तरीके से
हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आवर ईमेल्स। ठीक है, नाउ फॉर योर होमवर्क you have to create your own email IDs. Homework, create your own Gmail account. Second, share your Gmail IDs. Not yes, share your email ID with teacher. ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको एक अपना गूगल जीमेल का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको टीचर के साथ शेयर करना है। फॉर ईमेल आईडी का एग्जांपल क्या हुआ, एग्जांपल ऑफ ईमेल आईडी। ये क्या सबका सेम होगा? नहीं, ये सबका अलग होगा। अभी मैंने कौन सा ईमेल आईडी बनाया है, मैंने अभी बनाया था ये वाला mansi.singh66950@gmail.com। अभी मैंने ये वाला ईमेल आईडी बनाया। आपका ईमेल आईडी सपोज अगर अमृता बना रही है तो शी विल राइट amrita.gupta फिर कोई नंबर @gmail.com। ऐसे ही सब स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी उनके नाम के ऊपर होंगे। अगर सपोज अर्सिया बना रही है तो शील राइट arsia.khan देन कोई भी नंबर @gmail.com। so whoever is making, make under your own name. now some of your questions will be कि अगर आपके फोन में ऑलरेडी एक ईमेल आईडी है तो क्या आप नया बना सकते हो कि नहीं। ठीक है, सो हाँ, अगर आपके फोन में ऑलरेडी ईमेल आईडी है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, तो आप और नया बना सकते हो। देखो, अगर आप मेरे लैपटॉप में देखोगे मेरे 3 हो गए। ये तो मैंने अभी अभी बनाया, पुराना एक sing.mansi6695 वाला है और एक टीच फॉर इंडिया वाला ईमेल आईडी है। सो आई ऑलरेडी हैड 3। अगर मैं एक और नया बनाना चाहती हूँ तो आई कैन क्लिक ऑन एड अनदर अकाउंट, देन अगेन आई कैन डू द सेम प्रोसेस जो मैंने किया था। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके फॉर माई सेल्फ करके I can create another account. Okay, so this is how you also have to make. I hope homework is clear. So today's homework, you only have to send me your email ID. आपको सिर्फ अपना email ID मुझे send करना है। जो भी students मेरे को अपना email ID बनाकर send करेंगे, मैं उन लोगों को Google Classroom में add कर दूंगी। All right, that's it for today, everyone. Thank you so much.